Hello everyone, I Somesh Sharma, faculty of IT department from AKGEC, going to discuss about the topic structure and union of programming for problem solving subject using C language. So we try to understand what is structure and why we use it and how we can implement structure into the program. Okay. So first we understand structure is a user defined data type. It is a collection of different type of data or the collection of heterogeneous type of data. ठीक है. What we did in array, we have the similar type of data in array, but in structure we have different type of data. The syntax, how we can declare the structure. Look, first we write struct. Struct is a keyword. Then we write name of structure. आप उस structure को कुछ name देना चाहते हैं, then you will write name of the structure. Then we place the brackets, and under the brackets we declare the different types of data members. Data members कैसे? For example, data type 1 and then variable 1. Then we have data type 2, then variable 2, and so on. How many number of members we want to have in a structure we have. So this is basic the syntax of the structure. किसी भी structure को जब हम declare करेंगे तो इसका example भी मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पर. For example, as we have struct, it is what? It is a keyword. To declare a structure, we have to use a struct keyword. So we use struct. Fine. Then the name of the structure, let's suppose student. I want to create a structure for my student. Fine. Then the data type, let's suppose age. Let's suppose the age is int. Let's suppose name. I say name. So name is the character array. So I declare its name 30. ठीक. Let's suppose I say marks. Let's suppose it is float. ठीक है. Let's suppose fees. Fees would be of float. I write float fees. Fine. So here I have declared a structure of name student in which we have the 4 members, 1, 2, 3 and 4. These members are age, name, marks and fees. So this is the method by how we create the structure into the program. Now this is the template. अब हम कितने स्टूडेंट्स का ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर फॉर 2 स्टूडेंट्स. देन आई विल राइट struct student void
मेन, मान लीजिए मैंने लिखा S1, S2. S1 and S2 are the objects. Objects are the real word entity by which we can access the members of the structure. ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं? These are known as the members of structure. ठीक है, इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्स के मेंबर कहते हैं. दे आर डिफॉल्ट पब्लिक, मीन्स वी कैन एक्सेस दीज मेंबर्स इनसाइड द प्रोग्राम एनीवेयर. फाइन. हमने 2 स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया. नाउ द मेंबर्स विल बी एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर्स. आई राइट दीज मेंबर्स will be access using dot operators. Fine. हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग डॉट ऑपरेटर. कैसे करेंगे? लेट्स सपोज आई वांट टू राइट एज, नेम, मार्क्स, फीस. लेट्स सपोज आई से S1 dot age equals to 70.5. या हम कैसे लिखें? इंस्टेड ऑफ इट हाउ डू वी राइट? स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 equals to वैल्यूज क्या थी? एज, नेम. एज लेट सपोज एज इज 17.5, नेम इज ABC. ठीक. एंड देन मार्क्स इज 72 एंड फीस इज 17,550.75. ठीक है. तो हमने मेंबर्स की वैल्यूज को ऐसे डिफाइन कर दी. तो हम वैल्यूज को ऐसे डिफाइन करते हैं. दिस इज अ वन मेथड कि हमने स्ट्रक्ट बताया S1 दिस दिस दिस. फाइन. ऐसे ही हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू 18.5, नेम इज PQR, मार्क्स इज 45 एंड fees is 18,970.50. Fine. These are the method by which we can put the values inside the structure. This is one method in which we are not taking the values from the user, we are assigning the values directly. Fine. Is that clear? अब अगर हम इसे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? printf. अगर इंडिविजुअल एलिमेंट लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? printf. The first value is float modulus f, किसकी वैल्यू है ये? S1 की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? S1 डॉट एज. ठीक है. पहला एलिमेंट क्या था हमारा? इंटीजर था. ओके. तो इसको 0.5 हटा देते हैं, खाली हम इसमें इंटीजर वैल्यू रखेंगे. ठीक है. Is that clear? I suppose it is float. तो ये इंटीजर वैल्यू थी तो हमने इंटीजर एज रख ली. देन नेम इज एरे. तो एरे को प्रिंट कैसे करते हैं? पुट्स S1 डॉट नेम. ठीक. तीसरा वैल्यू क्या था हमारा? 72 मार्क्स विच इज फ्लोट. देन वी विल राइट printf modulus f S1 डॉट मार्क्स. चौथी वैल्यू क्या थी हमारी? printf फीस S1 डॉट फीस. तो बाय विच दिस वी कैन print the values of the
स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर की क्या क्या वैल्यूज थी उनको प्रिंट करना है तो वी कैन डू दिस। फाइन। अभी हमने यूजर से नहीं ली है वैल्यू, अगर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो हम कैसे सीखेंगे, वी सी इट नाउ। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन टू इट। मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर 2 स्टूडेंट का था, अब हम ये स्ट्रक्चर 3 स्टूडेंट का बनाना चाहते हैं, तो वी क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज आई से S1, S2 एंड S3। क्लियर है? नाउ आई वांट कि ये जो वैल्यूज है S1 की, यही वैल्यूज हम S3 को भी दे दें। तो व्हाट आई राइट, आई विल राइट S3 इज इक्वल टू S1, यानी कि स्ट्रक्चर 1 की जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई, S3 को असाइन हो गई। एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ S3, देन आई विल राइट printf एज आपका इंटीजर था मॉडुलस डी कॉमा S3 डॉट एज पुट्स S3 डॉट नेम एंड देन printf हमें क्या प्रिंट करना है, मार्क्स और फीस। देन आई राइट मॉडुलस f कॉमा मॉडुलस f S3 डॉट marks and S3 dot. So this is the way how we can put the values inside the structure. तो अगर हमें यूजर से नहीं लेना तो हम इस मेथड से वैल्यूज दे सकते हैं। एंड वी हैव लर्न वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। अनदर मेथड क्या है, जैसे ही आपने यहां पे स्ट्रक्ट लिखा था ना, यू हैव राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन यू कैन से इंटीजर x, फ्लोट y और कैर z, एंड यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट S1, S2। दिस इज अनदर मेथड कि आप S1, S2 बिफोर टर्मिनेटिंग द स्ट्रक्चर यू हैव मेंशन। फाइन। तो एक तो मेथड ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द ऑब्जेक्ट्स आर द रियल वर्ड एंटिटी बाय विच वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। याद रखिएगा सी के स्ट्रक्चर में हम केवल मेंबर्स लिखते हैं, मेथड्स नहीं लिखते हैं। एंड दे ऑल मेंबर्स आर ग्लोबली एक्सेसिबल inside the program, or you can say they are the public members. Fine. तो हमने सीखा क्या कि स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है, स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया, उसमें 4 मेंबर्स भी बनाए। अब मेंबर्स को हमने क्या कहा, डेटा मेंबर्स कहते हैं इनको, और ये पब्लिक होते हैं और ये एक्सेस किए जा सकते हैं प्रोग्राम में कहीं पर भी। ठीक, हमने मेन से पहले ये स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे मेन से पहले, आप चाहें तो मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, नो इशू इन दैट। और इन स्ट्रक्चर के हमने ऑब्जेक्ट भी बनाए, जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, S1, S2, S3, और इन मेंबर्स को हमने डायरेक्टली डिफाइंड कर दिया, यानी कि वैल्यूज हमने डायरेक्टली लिख दी, डिफाइन करने का मतलब है, और इन वैल्यूज को हमने प्रिंट करा लिया। प्रिंट कैसे करवाया हमने, यूजिंग डॉट ऑपरेटर्स। मेंबर्स विल बी एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर्स। फिर हमने ये देखा कि S1, S2, S3 हैं, और अगर हमें S3 में S1 की वैल्यू डालनी है तो हम वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, S3 इक्वल्स टू S1, दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने S1 की वैल्यू किस में डाली, S3 में, तो जो कॉपीज हो गई, और इन कॉपी वैल्यूज को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक, अब अगर हमें अब हम ये देखें एरे में स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा। अगर हम स्ट्रक्चर का साइज देखें तो ये कितना होगा, इंटीजर टेक्स 2 बाइट, नेम कैरेक्टर एरे है तो 30 बाइट, मार्क्स फ्लोट है तो 4 बाइट्स, एंड फीस भी फ्लोट है तो 4 बाइट्स। तो टोटल साइज क्या हो गया
2 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 40 बाइट्स, यानी कि स्ट्रक्चर टेक 40 बाइट इनटू द मेमोरी। अब जितने मेंबर्स के लिए हमने क्रिएट किया उतने नंबर ऑफ बाइट्स ओवर एलोकेशन हो जाएंगी। अगर एक के लिए तो 40 बाइट्स और 10 के लिए तो 400 बाइट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो हमने साइज भी निकालना सीख लिया। अब हम बात कर रहे थे कि अगर ये वैल्यूज हमें यूजर से लेनी है देन हाउ वी टेक, कैसे लेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है मार्क्स का और इसके अंदर 3 वैल्यू हैं, इंट x, x1, इंट x2 एंड इंट x3। x1, x2, x3 क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं। ठीक, अब हमने void main लिखा, void main, और हमने लिखा struct marks, हमने लिखा T1, T2 एंड T3। ठीक है, या चलिए ठीक है, अभी हम 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए मार्क्स में वैल्यूज इनपुट करा रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? इंटीजर हमें कुछ चाहिए नहीं, लिखिए printf enter the marks for T1। ठीक है, हम पहले T1 के लिए ले रहे हैं, फिर T2 के लिए लेंगे, फिर T3 के लिए लेंगे। सही है, तो हमने लिखा scanf मॉडुलस d, तीनों ही टाइप हमारे इंटीजर हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर d हो गया, एंड देन वी विल राइट T1 डॉट x1 एड्रेस T2 डॉट x2 एड्रेस T3 डॉट x3। So by this we can add the input the 3 subject marks for T1. T1 is the first student, and then printf enter the marks for T2, scanf modulus d and then modulus d address of T2 dot x1, address of T2 dot x2, address of T2 dot x3। ठीक, अब अगर हम लिख दें T3 equals to T1 means we are copying the marks of T1 to T3। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? printf modulus d T1 dot x1, T1 dot x2, T1 dot x3। Likewise printf modulus d T2 dot x1, T2 dot x2 and T2 dot x3। Likewise 3 स्टेटमेंट हमने लिख दिए हैं, printf modulus d T3 dot x1, T3 dot x2 and T3 dot x3। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने 3 मार्क्स लिए, जिसको हमने नाम दिया x1, x2, x3, और 3 ही स्टूडेंट्स के लिए हमने ये बनाया स्ट्रक्चर, और तीनों के लिए वैल्यू, हम 2 के लिए वैल्यू ली और तीसरी की वैल्यू को कॉपी कर दिया। ठीक, और इन्हीं मेंबर्स को हमने प्रिंट करा लिया। वी हैव लर्नड कि हमें जो मेंबर्स एक्सेस करने होते हैं वो किससे करते हैं? डॉट ऑपरेटर से करने होते हैं। फाइन, असाइनमेंट मैंने आपको सिखा ही दिया है कि आप एक स्ट्रक्चर की वैल्यू को दूसरे स्ट्रक्चर में पास कर सकते हैं, दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। नाउ अगर यही स्ट्रक्चर, कौन सा? स्ट्रक्ट मार्क्स इंटीजर x1, इंटीजर x2 एंड इंटीजर x3, ये स्ट्रक्चर अब हमें 50 स्टूडेंट के लिए बनाना है।
अगर हमें ये स्ट्रक्चर 50 स्टूडेंट के लिए बनाना है तो क्या हम 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें? नहीं, वी हैव लर्न एरे। तो हमें क्या करना होगा, हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाने का एक मेथड क्या है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन में सीखा था कि या तो हम यहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और हम लिख दें T of 50, दिस इज द वन वे, फाइन। और या हम क्या लिखें, void main struct marks of 50, यानी कि दिस इज ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो आप ऐसे बना लें, दिस इज ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। या तो आप ऐसे बनाएं या आप ऐसे बनाएं। ठीक, अब मार्क्स कैसे इनपुट करेंगे, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर i, फिर हमने कहा printf enter the marks for 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए हम मार्क इनपुट करा रहे हैं, क्योंकि ये एरे है तो हमें क्या चलाना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। लूप कैसे चलाएंगे, फॉर इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है, 0 से कहां तक जाएंगे, लेस देन 50 एंड देन i प्लस प्लस। printf, sorry, instead of printf we are taking the values, so we use scanf. What we write, scanf modulus d comma address of t of I dot x1 comma address of t of I dot x2 comma address of t of I dot x3। ठीक है, ये बात समझ में आती है। देखिए हमने क्या करा, पहले स्टूडेंट के लिए i बराबर 0 यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट, 0 के लिए पहला सब्जेक्ट, 0 के लिए दूसरा सब्जेक्ट एंड 0 के लिए तीसरा सब्जेक्ट। अब हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पहले स्टूडेंट के डाले। एज द लूप विल इटरेट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 and up to 49. So there would be the 50 students marks will be entered by the user. Fine. अगर इसी को हमें प्रिंट कराना है तो how we do so? Again we start the loop for I equals to 0, I less than 50, I plus plus, printf modulus d address, sorry, instead of address we'll have the print value, so in printf we do not use address operator, we use t of I dot x1 comma t of I dot x2 comma t of I dot x3. Fine, is that clear? And then we close. So we have learned the array of structure 2. एक स्ट्रक्चर बनाया, ऑब्जेक्ट या तो आप ऐसे बना लीजिए या आप मेन में जाइए और ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन क्रिएट द एरे ऑफ स्ट्रक्चर। वैल्यूज कैसे लेंगे, क्योंकि एरे ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है तो वैल्यूज हमें लूपिंग के थ्रू, इटरेशन के थ्रू लेनी पड़ेगी, एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। नाउ सी नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक, लेट्स सपोज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टूडेंट। ठीक, अब हमने क्या कहा, एक स्ट्रक्चर में
हमने कहा केर नेम है उसका, ठीक, और हमने कहा फ्लोट एज, ठीक है, इज दैट क्लियर। और एक स्ट्रक्चर हमने बनाया किसका, एड्रेस का। एड्रेस में हमने लिखा कैर डिस्ट्रिक्ट ऑफ 50, कैर, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, कैर सिटी ले लेते हैं, चलिए कैर सिटी हमने ले लिया, और हमने इंटीजर हाउस नंबर ले लिया, ठीक। ये 3 नंबर। तो पहला स्ट्रक्चर तो हमारा ये हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को नेस्टिंग करना चाहते हैं। नेस्टिंग कैसे करेंगे? अगर हम इस स्ट्रक्चर को नेस्टिंग करना चाहते हैं तो नेस्टिंग के लिए मेथड क्या है कि आप इस स्ट्रक्चर के एड्रेस को के ऑब्जेक्ट को इस स्ट्रक्चर के अंदर रख दीजिए। हाउ वी डू सो? देन वी राइट स्ट्रक्ट एड्रेस ADDR, fine. This is the first. This is the first method कि हम स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट पहले स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, या इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर रखना चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए, ठीक। या दूसरा मेथड क्या है, हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड देन से कैर नेम 50 इंट एज, और इसी के अंदर स्ट्रक्ट एक हमने बना दिया एंड आई से कैर सिटी 30, कैर डिस्ट्रिक्ट 50 एंड इंट हाउस नंबर, ठीक। और इसका आप चाहें तो इसका नाम हम ADD रखते हैं, ठीक है। ऐसे हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को नेस्टिंग कर सकते हैं। मेंबर्स कैसे एक्सेस होंगे? देखिए हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S10, 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाए मान लीजिए, तो एक्सेस कैसे करेंगे? SOFI डॉट ADDR डॉट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टूडेंट के स्ट्रक्चर का डॉट एड्रेस डॉट डिस्ट्रिक्ट, SOFI डॉट एड्रेस डॉट सिटी, SOFI डॉट एड्रेस डॉट हाउस नंबर। और अगर हमें स्टूडेंट का लिखना है तो स्टूडेंट का कैसे लिखेंगे? SOFI डॉट नेम। ऐसे हम मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। तो दिस इज द नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। Now union is similar to the structure. There is only difference in the syntax. It starts with the name union, then name of union, then data type var1, data type 2, var2 and so on. Fine.
The difference between structure and union is that स्ट्रक्चर में हर मेंबर्स को सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होता है. मान लीजिए यूनियन, मैंने कहा यूनियन मार्क्स और मैंने लिखा इंटीजर x1 एंड फ्लोट y1, और सेम ही मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया स्ट्रक्ट मार्क्स एंड आई राइट इंटीजर x1 एंड देन फ्लोट आई राइट y1. तो क्या साइज में डिफरेंस है दोनों के? यस. इसमें टोटल एलोकेशन कितने का हुआ? 6 बाइट का. बट इन केस ऑफ यूनियन द एलोकेशन इज ऑफ 4 बाइट, यानी कि जो हाईएस्ट टाइप का डाटा होगा उसको मेमोरी एलोकेट होगी इन केस ऑफ यूनियन. बट इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ओनली द ऑल द मेंबर्स विल गेट द मेमोरी स्पेस. इससे क्या हुआ कि यहाँ पे सारे मेंबर्स एक साथ हम एक्सेस कर सकते हैं, बट हेयर वी कैन एक्सेस सिंगल मेंबर एट ए टाइम. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड द स्ट्रक्चर. मेंबर्स विल बी accessed similarly as we do access in the structure. Okay, so this is about structure and union. Some more things will be come in the next lecture.